available. हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके. Yes, sir. हेलो. हाँ, यस सर, यस. स्मिता, आपको आपका रोल नंबर अंडरस्कोर आपका नाम ऐसे एडिट करना है. स्मिता एवला. Your Okay. roll number under your name. Rajmo sir, please start the session. Yes sir, yes sir, yes. Good afternoon all. Myself Naneshwar Rajnur, I am going to conduct laboratory practice second with my colleague Professor Domse. Now look at the some syllabus of the laboratory practice second. Actually the syllabus that is examination system for laboratory practice second, that is divided into two parts, that is 50 marks for term work and 50 marks for presentation. There is no execution of any practical, only there is oral and presentations. Now COs of the laboratory practice second. There are total three COs that is created by me and Domse sir. First CO is ability to handle various data mining algorithm using tool like RapidMiner or RStudio. Then second CO is perform automation testing for desktop based application using various open source tool like Selenium, JMeter, JUnit, etc. Then third CO is perform automation testing for web-based application using Selenium, WebDriver, Selenium IDE. Also prepare test plan, test execution, and test result and defect report. So this is the three COs. Now there are total 12 universities POs. Now we are going to map these three COs with the university 12 POs. Okay. Look at the chart, that's a CO1, CO2 and CO3. Then this is the 12 universities POs, that is PO02, PO12. Also there is program specific outcomes. Now first CO of our laboratory practice second is match with PO1. PO1 that is, it is nothing but the engineering knowledge. Then second PO is problem analysis. Third PO is design and development of solution. Means our first CO is mapping with PO1, PO2 and PO3 as well as PO5. What is meant by PO5? PO5 indicate modern tool uses. For example, we are using RapidMiner, RStudio. This is the modern tool we are going to use in this practical. Then यहाँ पे PO number 12. What is PO number 12? PO number 12 is lifelong learning. तो यहाँ पे जैसे कि रैपिड माइनर हमें यूज करना है, यहाँ पे कि जो डाटा माइनिंग का टूल हमें यूज करना है, दैट इज द लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेसेस. सो दैट वी हैव मैप दिस CO1 with this PO12. अगेन यहाँ पे PSO1, PSO2 and PSO3. What is PSO1? That is professional skill.
PSO second is problem solving skill, and PSO 3 is successful career and entrepreneurship. Means our three COs is map with PSO1, PSO2 and PSO3. Likewise, we have map also CO2 and CO3 with these 12 POs and 3 PSOs. This is the average of average mapping of CO and this PO. Okay, now look at the syllabus or assignment we are going to conduct for this laboratory practice second. That is available on my blog as well as Professor Dhomche sir's blog. LP2 practicals. That is a LP2 practicals that is based on two subjects, that is data mining and warehousing. The course code of data mining and warehousing is 410244. Okay, and second part, that is it is based on software testing and quality assurance. Means the laboratory practice that is totally based on data mining and data warehousing as well as software testing and quality assurance. Here there are a total 7 assignment. Assignment number 1 to 5, assignment number 1, assignment number 2, then assignment number 3, then assignment number 4. Then there are 2 mini project that is based on data mining and data warehousing. First mini project. Then here is a okay. Means there are total 4 assignment and 1 mini project that is included in data mining and warehousing, as well as there are total 2 mini projects that is based on software testing and quality assurance. Look at this code 410245, software testing and quality assurance. There are no assignment for software testing and quality assurance. There are only total 2 mini project first and mini project second. What is the criteria to create the mini project? We have to form the group of 2 to 3 peoples and we have to develop these 3 mini projects. That is one mini project based on data mining and warehousing and another 2 mini project that is based on software testing and quality assurance. Okay, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को सभी को? ओके, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम कैसे, यहाँ पे 50 मार्क ओरल के लिए और उसके बाद में 50 मार्क किसके लिए, प्रेजेंटेशन और जैसे हम बोलते मतलब यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए 50 मार्क है और उसके बाद में 50 मार्क तुम्हारे ओरल के लिए। यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब एक्सटर्नल के सामने आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना है सिस्टम के ऊपर, ओनली आपको क्या करना है, ओरल देना है। यहाँ पे टोटल 7 असाइनमेंट है, उसमें से 4 है तुम्हारे, 4 क्या तुम्हारे असाइनमेंट है और उसमें से 3 क्या तुम्हारे मिनी प्रोजेक्ट है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, व्हाइल द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू हैव टू रिप्रेजेंट योर 3 मिनी प्रोजेक्ट एज वेल एज यू हैव टू प्रेजेंट योर 4 असाइनमेंट। तो टोटल यहाँ पे 7 असाइनमेंट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है कौन सा, लैबोरेटरी प्रैक्टिस सेकंड। ओके, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, वी हैव हैविंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा वेयर हाउसिंग एज वेल एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये दोनों सब्जेक्ट के ऊपर टोटली आपका ये लैबोरेटरी प्रैक्टिस का लैबोरेटरी प्रैक्टिस सेकंड के असाइनमेंट आपके डिपेंड्स है। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि कुछ डाउट? यस, हेलो, नो सर। ओके। तो उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे कि जो प्रैक्टिकल हमें कंडक्ट करना है यहाँ पे। तो पहला जो पार्ट है यहाँ पे कौन सा, डाटा माइनिंग एंड डाटा वेयर हाउसिंग। डाटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग, ओके। प्रोफेसर पवार मैडम इज सब्जेक्ट इंचार्ज ऑफ डाटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग। तो उसमें से जो पार्ट है तो उसको हमें क्या करना है यहाँ पे, कुछ उसको उसके ऊपर जो असाइनमेंट है, 4 असाइनमेंट और एक मिनी प्रोजेक्ट है, टोटल कितने, 5 असाइनमेंट उसके ऊपर है। तो पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि डाटा माइनिंग और डाटा वेयर हाउसिंग क्या होता है। तो डाटा वेयर हाउस मतलब क्या होता है यहाँ पे, द डाटा कंसिस्ट ऑफ द वेरियस डाटा कंसिस्ट ऑफ इन द वेयर हाउस। और डाटा माइनिंग क्या है, डाटा वेयर हाउसिंग और डाटा माइनिंग अगर इसके हमें डेफिनेशन करना है डाटा माइनिंग के, वो हैव टू एक्सट्रैक्ट दी नॉलेज फ्रॉम ह्यूज नंबर ऑफ डाटा सेट और डाटा वेयर हाउस।
जो ह्यूज नंबर ऑफ वेयर हाउस है उसमें से हमें क्या करना है, हमें मीनिंगफुल डाटा लेना है यहाँ पे, उसको एक्सट्रैक्ट करना है किसके लिए, फॉर टेकिंग प्रॉपर डिसीजन, डिसीजन हमें लेना है यहाँ पे, बराबर। जैसे कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे अमेजोन का वेबसाइट है, अभी उसके ऊपर से हमें क्या करना है कि मेरा अगर बजट है यहाँ पे कौन सा 10,000 का मुझे मोबाइल यहाँ पे परचेस करना है, बराबर है। तो अमेजोन के ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रांड्स के क्या होते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ क्या होते हैं वहाँ पे, डाटा वेयर हाउसेस होते हैं, वहाँ पे जो आइटम्स होते हैं स्टोर होते हैं, लेकिन उसमें से मुझे क्या करना है, 10,000 का मुझे मोबाइल फोन लेना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब अमेजोन का है, अमेजोन का डाटाबेस दैट इज नथिंग बट दी वेयर हाउस, और उसमें से मुझे क्या करना है कि उसमें से मुझे एक मोबाइल फोन परचेस करना है कौन सा 10,000 का, तो वहां से मुझे क्या करना है 10,000 का अगर मुझे मोबाइल यहाँ पे परचेस करना है, मतलब क्या होता है उसका, टू फाइंड आउट द नॉलेज और सॉल्यूशन फ्रॉम ह्यूज नंबर ऑफ डाटा और ह्यूज नंबर ऑफ डाटा रिसोर्सेज, उसमें से मुझे क्या करना है, मीनिंगफुल डाटा अगर लेना है तो उसके लिए मुझे डाटा माइनिंग के टूल यूज करना है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डाटा माइनिंग का। अभी डाटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, यहाँ पे पहले होता है यहाँ पे यूजर इंटरफेस होता है, जैसे कि अमेजोन की साइट है, वहां पे हम क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं और सर्च करते हैं वहां पे कौन सा मोबाइल रेंज, ओके, इन बिटवीन 10,000 टू 15,000, ओके। तो ये क्या मेरा यूजर इंटरफेस, जहां से मैं क्या करता हूँ, मेरी जो क्यूरी है उसको मैं फायर करता हूँ। जैसे मैं क्यूरी फायर करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पैटर्न जनरेट करता है, कौन सिस्टम पैटर्न जनरेट करता है। पैटर्न कैसे जनरेट करेगा वो, कि मुझे ऐसे मोबाइल फोन चाहिए कि जिसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए, ओके। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या। उसके बाद में उसका नेक्स्ट वाला पार्ट क्या होता है यहाँ पे, कि जो डाटा माइनिंग का इंजन होता है, डाटा माइनिंग इंजन होता है, देखो पहला कौन सा, यूजर इंटरफेस, सेकंड वन क्या होता है यहाँ पे, पैटर्न जनरेशन करता है, पैटर्न को इवेल्युएट करता है, पैटर्न को क्रिएट करता है। 10,000 का मोबाइल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे पैटर्न को जनरेट करने पड़ेगा, ओके। उसको स्पेसिफिक मुझे इंस्ट्रक्शन देनी, किसको, डाटा माइनिंग का जो इंजन है उसको। तो डाटा माइनिंग का इंजन क्या करेगा, यहाँ पे पैटर्न लेगा, वो पैटर्न किसको सेंड करेगा, इट इज सेंड टू द सर्वर। अभी कौन सा सर्वर, यहाँ पे डाटाबेस सर्वर है, डाटा वेयरहाउस सर्वर है, तो ये सर्वर के पास मेरा पैटर्न जाएगा। अभी जैसे सर्वर के पास मेरा पैटर्न जाता है, कौन सा 10,000 का मुझे मोबाइल चाहिए, बराबर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सर्वर है, सर्वर मतलब क्या होता है, यहाँ पे सर्वर इज नथिंग बट दी वेटर, वेटर के जैसे काम करेगा। जैसे मैं उसको ऑर्डर देता हूँ कि मुझे 10,000 का मोबाइल चाहिए, तो वो सर्च करेगा यहाँ पे, अगर उसके पास, देखो कहाँ कहाँ से सर्च करेगा वो, इट इज सर्च इनसाइड द डाटाबेस, डाटा वेयर हाउस और अनदर रिपोजिटरी, मतलब जितने सारे लिंक्स होते हैं वहां पे क्या करेगा, वो सर्च करेगा। जैसे ही उसको क्या मिल जाता है, वो मोबाइल फोन मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, फिर से वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा, फिर से कहाँ पे आएगा वो, डाटाबेस से वहां कहाँ पे आएगा वो, डाटा सर्वर के पास जाएगा। लेकिन सर्वर के पास आते वक्त वो क्या करता है, यहाँ पे डाटा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है, ओके, नॉइजी होता है उसके अंदर, नॉइजी होता है। नॉइजी मतलब क्या होता है, वहां पे अगर नॉइजी है, मुझे प्रॉपर डाटा सेट चाहिए, तो वहां पे मुझे क्लींजिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, सो दैट जो डाटा मेरे पास आ रहा है वो कैसा प्योर डाटा आना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, पहले ये होता है सिलेक्शन होता है डाटा का, डाटा सिलेक्ट करेगा, उसके बाद में क्लींजिंग करेगा, क्लींजिंग होने के बाद में इंटीग्रेशन करेगा। अगर ये तीन ऑपरेशन होने के बाद में, कौन कौन से, क्लींजिंग, सिलेक्शन, उसके बाद में इंटीग्रेशन, ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में ये जो डाटा आएगा किसके पास आएगा, ये डाटा सॉरी सर्वर के पास आएगा। अभी सर्वर किसको सेंड करेगा, ये सर्वर डाटा जो इंजन है, डाटा माइनिंग इंजन, उसको सेंड करेगा। डाटा माइनिंग इंजन किसको सेंड करेगा, ये जो पैटर्न है, पैटर्न को सेंड करेगा। उसके बाद में यूजर को क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्चुअल उसको रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे होता है। उसके बाद में और यहाँ पे एक फैक्टर काम करता है, कौन सा, नॉलेज बेस। नॉलेज बेस मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी मुझे पैटर्न यहाँ पे जनरेट करे, कौन सा 10,000 का मोबाइल मुझे परचेस करना है, सो दैट द डाटा माइनिंग इंजन कैन क्रिएट द नॉलेज बेस्ड डाटाबेस। तो जैसे कि 10,000 का अगर मुझे मोबाइल लेना है, यहाँ पे जो क्यूरी होता है उसको क्या करेगा, वो कैशे के अंदर स्टोर करेगा, मतलब नॉलेज बेस के अंदर वो स्टोर करेगा, ओके। तो बार बार उसको पूरी सारी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे अगर मैं कोई यहाँ पे उसको पैटर्न देता हूँ कि मुझे 10,000 का और एक मोबाइल परचेस करना है, तो सिंपली कहाँ पे जाएगा, वो नॉलेज बेस के अंदर जाएगा, और वहां से तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्टली वो तुम्हें डाटा मिल जाएगा। मतलब बार बार उसको ये सारी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग। डाटा वेयर हाउस मतलब क्या होता है, ह्यूज नंबर ऑफ डाटा सेट, और डाटा माइनिंग मतलब जो ह्यूज नंबर ऑफ डाटा सेट होता है, डाटा बेसिस होता है, उसमें से मुझे क्या करना है, मीनिंगफुल डाटा अगर मुझे लेना है, ओके, उसको फेच करना है, तो उसके लिए डाटा माइनिंग टूल यूज करता है, ओके। तो ये डाटा माइनिंग टूल हमें यहाँ पे यूज करना है, कौन सा, रैपिड माइनर। रैपिड माइनर ये कौन सा है, फ्रीवेयर होता है,
अब आपके लैपटॉप के ऊपर आपको इसको इंस्टॉल करना है और जितने सारे असाइनमेंट है कौनते ये 5 असाइनमेंट है आपको उसके ऊपर परफॉर्म करना है। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? यस, एनीबडी कैन रिप्लाई? हेलो? No, sir. ओके, ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया हमारा कौन सा कि टोटल यहाँ पे 7 असाइनमेंट है, 5 असाइनमेंट बेस्ड ऑन डाटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग एंड 2 असाइनमेंट बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो टोटल 7 ही असाइनमेंट हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। उसमें से क्या है, 4 तुम्हारे असाइनमेंट है और 3 मिनी प्रोजेक्ट है। ओके, मिनी प्रोजेक्ट आपको कैसे फॉर्म करना है यहाँ पे कि यू हैव टू फॉर्म द ग्रुप ऑफ 2 to 3 पीपल्स, और ग्रुप के अंदर आपको क्या करना है, ये 3 ही प्रोजेक्ट आपको बिल्ड करना है, उसको इंस्टॉल करना है या उसको रन करना है, उसको बिल्ड करना है, उसको डिजाइन करना है। सारे प्रोसीजर आपको होगा यहाँ पे। उसके बाद में हम देखते हैं अभी कि डाटा माइनिंग टूल, जैसे कि हमें यहाँ पे रैपिड माइनर यूज करना है। तो आपको अभी क्या करना है कि आपके लिए असाइनमेंट है, जैसे कि अटेंडेंस जो लिंक है जिसके अंदर हमने क्वेश्चन डाला यहाँ पे कि आपको जो डाटा माइनिंग टूल है एज लाइक रैपिड माइनर, तो आप लोगों को क्या करना है कि नंबर ऑफ टूल कौन कौन से यूज कर सकते हैं, किसके लिए, फॉर दिस असाइनमेंट ऑफ लैबोरेटरी प्रैक्टिस सेकंड। तो यहाँ पे रैपिड माइनर है। अभी रैपिड माइनर टूल किसके लिए यूज करना है, उसका यूज किसके लिए होता है, हम देखने वाले हैं यहाँ पे। रैपिड माइनर टूल क्यों यूज करना है हमें। रैपिड माइनर स्टूडियो इज विजुअल डाटा साइंस वर्कफ्लो डिजाइनर accelerating the prototype and validation of models, easy to use visual environment for building analytic processes, then graphical design environment make it simple and fast to design better model। तो रैपिड माइनर स्टूडियो है, इसको क्या बोलते हैं, स्टूडियो। जैसे आपका होता है ना डॉट नेट का स्टूडियो होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, रैपिड माइनर स्टूडियो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, आपको क्या करना, सिर्फ डिजाइन करना पड़ता है, उसके बाद में उसका लिंकिंग करना पड़ता है डाटा सेट के अंदर, और हमें जैसे रिजल्ट चाहिए हम उसको रिजल्ट को जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में रैपिड माइनर आपको कौन से साइट के ऊपर से क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे साइट का नाम दिया है, हाउ टू इंस्टॉल रैपिड माइनर। तो यहाँ पे ये जो लिंक है, मैं आपको जो गूगल क्लासरूम है LP2 का, उसके ऊपर ये लिंक डालूंगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि सिंपली आपको यू हैव टू इंस्टॉल रैपिड माइनर इनटू योर लैपटॉप, और आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है कल के लिए। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ रैपिड माइनर क्लिक के ऊपर, तो मुझे ये ऐसा विंडो दिखाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरी प्रोसीजर बताए, मतलब कहाँ से कौन से साइट से आपको क्या करना है, रैपिड माइनर स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखो docs.rapidminer.com लेटेस्ट स्टूडियो इंस्टॉलेशन। ओके, तो यहाँ पे प्रोसीजर दिया है, मतलब उसके स्क्रीनशॉट भी दिया आपको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोग। ये डाउनलोडिंग रैपिड माइनर स्टूडियो, ओके, स्टेप बाय स्टेप उसका इंस्टॉलेशन दिया। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में ही विल आस्क फॉर विंडोज दैट इज 32 बिट, उसके बाद में विंडोज 64 बिट, उसके बाद में मैक, और यहाँ पे कौन सा है, लिनक्स। तो इसके लिए आपको पूछेगा डिपेंड्स अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका 64 बिट का तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, 32 बिट का तो वहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे कि अभी मेरा लैपटॉप के ऊपर कौन सा यहाँ पे विंडोज 64 बिट का है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है सिंपली, और उसको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। अभी डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, उसको ओपन करना है। ओके, ओपन करने के बाद में यहाँ पे पहला विंडो आएगा, यहाँ पे कौन सा, क्रिएट रैपिड माइनर अकाउंट। आपको मतलब ये फ्रीवेयर है, तो आपको यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए क्या क्या जो फील्ड्स आपको नेसेसरी यहाँ पे, तो फर्स्ट वन इज द मेल आईडी, देन आपको पासवर्ड डालना है यहाँ पे, देन यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। ओके, उसके बाद में जैसे आप क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रिएट माय अकाउंट, तो वैलिडेशन करता है ये, मतलब उसके लिए आपको क्या चाहिए, जीमेल का अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में चेकिंग अकाउंट एक्टिवेशन, मतलब वो तुम्हारा ट्रेडिशनल चेक करेगा यहाँ पे, यूजर नेम, तुम्हारा पासवर्ड, ये सारा चेक करेगा यहाँ पे। और तुम्हें तुम्हारा मेल होगा, उसके ऊपर ये लिंक देगा, देखो वी हैव सेंड यू एन ईमेल। तो ईमेल यहाँ पे एक्टिवेशन होगा, लिंक वहाँ पे होगा, आपको उस वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में क्या होगा, वो रेडी हो जाएगा।
जैसे आप एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट विंडो आएगा ऐसा रैपिड माइनर स्टूडियो। ओके, तो ऐसा आपको विंडो यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस सभी को समझ में आ गया। आई थिंक ये 400 या ऐसे 450 MB का सेटअप है रैपिड माइनर का। थोड़ा सा मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर अच्छा रहता तो रैपिड माइनर उसके ऊपर अच्छी तरीके से रन हो सकता है। ओके, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अच्छे होना चाहिए तुम्हारा लैपटॉप का इसके ऊपर। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है क्या? रैपिड माइनर कहाँ से आपको इंस्टॉल करना है, ये जो लिंक है यहाँ पे जाना है आपको। ओके, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, ये प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिए क्या क्या चीजें आपको परफॉर्म करनी है। उसके बाद में जैसे आपका रैपिड माइनर रेडी टू यूज हो जाता है तो यहाँ पे आपको ये डिफॉल्ट विंडो ऐसे दिखाई देगा आप लोगों को। ओके, तो उसके बाद में हम अभी देखते हैं कि यहाँ पे जो पहला असाइनमेंट है। ओके, हमको क्या करना है, सिंपली एक डाटा सेट लेना है और डाटा सेट को हमें क्या करना है एक प्रोसेस बिल्ड करना है। डाटा सेट लेके हमें एक प्रोसेस बिल्ड करना है, उसको रन करना है और रिजल्ट को हमें देखना है यहाँ पे। तो सिंपली जैसे कि मैं क्या करता हूँ, रैपिड माइनर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये 2-3 मिनट लेता है ओपन करने के लिए। ओके, तो ये मेरा डिफॉल्ट विंडो यहाँ पे कौन सा, रैपिड माइनर का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखो रैपिड माइनर का स्टूडियो ये, और उसका वर्जन कौन सा, यहाँ पे 9.7 वर्जन है उसका रैपिड माइनर का। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, कौन सा, डिजाइन, उसके बाद में रिजल्ट व्यू, डिजाइन व्यू एंड रिजल्ट व्यू। अभी डिजाइन व्यू के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे इन डिजाइन व्यू देर आर टोटल 4 पैनल। अभी डिजाइन करने के लिए हमें 4 पैनल यूज करना है। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिख रहा है कौन सा, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है कि तुम्हारा जो डाटा सेट तुम्हें यूज करना है और उसके बाद में प्रोसेसेस बिल्ड करना है, ये सारा चीजें कहाँ पे परफॉर्म होने वाला है, कहाँ पे ये स्टोर होने वाला है, इन रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब डाटाबेस। ओके, डाटाबेस और जो प्रोसेसेस है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको डाटा सेट हमें या डाटाबेस हमें यहाँ पे स्टोर करना है। उसके बाद में प्रोसेसेस यहाँ पे हमें क्रिएट करना है, उसको बिल्ड करना है। उसके बाद में डिजाइन व्यू का सेकंड जो पैनल है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑपरेटर। मतलब कौन कौन से ऑपरेटर हमें यहाँ पे यूज करने हैं, किसके लिए, व्हाइल बिल्ड दी प्रोसेस। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं यहाँ पे कौन से डाटाबेस से अगर क्या करना है तुम्हें, डाटा वेयर हाउस से अगर तुम्हें डाटा लेना है तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे ऑपरेशन हमें उसके ऊपर परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे डाटा क्लिनजिंग का ऑपरेशन होगा यहाँ पे, उसके बाद में मॉडलिंग का होगा। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इसका ब्यूटी क्या है रैपिड माइनर का, यहाँ पे उन लोगों ने डायरेक्ट किया दिया है कि सर्च इंजन दिया है यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर टाइप करता हूँ कोरिलेशन मैट्रिक्स, ओके, अगर उसके ऊपर मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ तो सिंपली क्या होता है, वो जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। सिंपली मुझे क्या करना है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद में प्रोसेस व्यू है। अभी प्रोसेस व्यू के अंदर क्या करना है, मुझे प्रोसेस को बिल्ड करना है। देखो यूर प्रोसेस लुक्स एम्प्टी, मतलब यहाँ पे अभी जो इनिशियल स्टेज में अगर तुम्हारा रैपिड माइनर स्टूडियो ओपन होता है तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखाई देगा कौन सा, यूर प्रोसेस लुक्स एम्प्टी, ऐड सम डाटा फर्स्ट, ड्रैग डाटा और ऑपरेटर हियर। मतलब यहाँ पे आपको क्या क्या ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। एक तो डाटा कहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, फ्रॉम दी रिपोजिटरी। और प्रोसेस के लिए आपको ऑपरेटर कहाँ से लेना है, ऑपरेटर ये जो पैनल है कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड का। ओके, ये बिलो वाला, यहाँ से आपको क्या करना है, ऑपरेटर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद में यहाँ पे पैरामीटर है। अभी पैरामीटर किसके लिए आपको सेट करना है, जैसे कि ऑपरेटर है तो ऑपरेटर के यहाँ पे आप पैरामीटर सेट कर सकते हो। आगे वाले असाइनमेंट हम देखने वाले कि पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। हेलो, ओके। उसके बाद में हेल्प। अभी हेल्प किसके लिए, अभी हेल्प का बहुत अच्छा यहाँ पे यूज दिया है। अब जैसे कौन सा भी आप यहाँ पे ऑपरेटर लेते हो, यहाँ पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सिर्फ उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो जो ऑपरेटर है तो उसके बारे में यहाँ पे पूरी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। मतलब उनसे कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, वो ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हेल्प पैनल में आपको दिखाई देगा। तो ये जनरल ओवरव्यू इसका रैपिड माइनर स्टूडियो का। तो उसके अंदर क्या क्या है, यहाँ पे पहले यहाँ पे डिजाइन व्यू है और दूसरा कौन सा यहाँ पे रिजल्ट व्यू है। उसके बाद में देखो एटम मॉडल है, उसके बाद में डिप्लॉयमेंट, उसके बाद में टर्बो रिप। अभी ये जो 3 व्यू है ये आपको किसके लिए यूज करना है, यहाँ पे ये नॉर्मली जो एडवांस हम रैपिड माइनर के प्रोजेक्ट डेवलप करते तो उसके लिए ये काम में आने वाला है। फिलहाल हम इसके ऊपर दोनों के ऊपर फोकस करते हैं, कौन सा, डिजाइन व्यू एंड रिजल्ट व्यू।
अभी सिंपली मुझे क्या करना है यहाँ पे कि मुझे एक डाटा सेट है उसको मुझे इंपोर्ट करना है। तो उसको इंपोर्ट हम कैसे करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका कौन सा है रिपोजिटरी, उसके बाद में रिपोजिटरी के अंदर कौन सा यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी, इसको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में राइट क्लिक करो यहाँ पे, उसके बाद में कौन सा क्रिएट सब फोल्डर। ओके, तो अभी ये लोकल रिपोजिटरी, अभी मुझे क्या है कि मेरा यूजर है, अभी यूजर का मुझे यहाँ पे क्या स्टोर करना है, एक तो यूजर का डाटा मुझे स्टोर करना है यहाँ पे, और यूजर की जो प्रोसेस है प्रोसेस को भी मुझे स्टोर करना है। तो मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ पे डाटा के लिए एक सब फोल्डर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे लोकल रिपोजिटरी के अंदर। ओके, मैंने इसके ऊपर ओके बोला है। उसके बाद में गो टू अगेन लोकल रिपोजिटरी, राइट क्लिक ऑन लोकल रिपोजिटरी एंड क्रिएट सब फोल्डर। अभी मैंने एक फोल्डर किसके लिए क्रिएट किया यहाँ पे डाटा के लिए, और दूसरा फोल्डर अभी मुझे मुझे किसके लिए क्रिएट करना है यहाँ पे प्रोसेस के लिए। मतलब आपके जितने सारे ये 5 असाइनमेंट है तो वहां पे वो कहाँ पे स्टोर होने वाले यहाँ पे जो प्रोसेस नाम का फोल्डर है तो उसके अंदर ये स्टोर होने वाला है। देखो यहाँ पे कौन सा है लोकल रिपोजिटरी, हाउ आई क्रिएटेड दिस न्यू फोल्डर, राइट क्लिक किया सिंपली और यहाँ पे कौन सा क्रिएट सब फोल्डर। उसके बाद में पहला फोल्डर मैंने किसके लिए क्रिएट किया डाटा के लिए, और दूसरा फोल्डर किसके लिए मैंने क्रिएट किया यहाँ पे प्रोसेस के लिए क्रिएट किया है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे ये जो डाटा है इसके अंदर मुझे क्या करना है डाटा सेट को इंपोर्ट करना है। तो सिंपली मुझे क्या करना है यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, किसके ऊपर, आई हैव क्लिक ऑन द डाटा फोल्डर, देन क्लिक ऑन द इंपोर्ट डाटा, इंपोर्ट डाटा बोला मैंने यहाँ पे। उसके बाद में अभी मेरा जो CSV फाइल है, ओके कौन सा भी एक फाइल आप लिख सकते हो, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे CSV फाइल है और डाटा सेट्स अवेलेबल है, उसमें से आप कौन सा भी डाटा सेट ले सकते हो, किसके लिए, फॉर एनालिसिस पर्पजेस। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे माय कंप्यूटर। उसके बाद में अभी मेरा जो डाटा सेट है दैट इज अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप। तो यहाँ पे मुझे एक डाटा सेट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है उसको, ये डाटा सेट यहाँ पे कौन सा टोयोटा कोरोला। ओके, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अभी मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको नेक्स्ट बोलता हूँ। ओके, जैसे मैं इसको नेक्स्ट बोलता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो डाटा सेट है, देखो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, मतलब CSV फाइल है वो, तो यहाँ पे बताते हैं कॉलम ऑपरेटर कौन सा यहाँ पे कॉमा। उसके बाद में जितने सारे यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट इन द सेंस कॉलम्स, ये सारे कॉलम्स यहाँ पे लेता है वो। देखो मतलब वो टोयोटा कोरोला नाम का क्या डाटा सेट है, उसमें से सारे जो कॉलम्स है उसने अभी इसके ऊपर सिंपली क्या किया उसको इंपोर्ट किया है। ठीक है, इसको अभी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है इसको नेक्स्ट करना है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे उसको नेक्स्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे डाटा फॉर्मेट आता है। ओके, डेट फॉर्मेट आता है यहाँ पे कौन सा है MMDDYY, मतलब ये यहाँ पे दिया होता है यहाँ पे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो। 10 मिनट बाकी है सिर्फ सेशन खत्म होने को। ठीक है, डोमसे सर हॅलो, यस सर. ती लिंक टाकून दे ना अटेंडन्स फक्त चॅट विंडो वरती आपल्या। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यू आर शोइंग हियर द नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स इन द सेंस एट्रीब्यूट क्या क्या है, वो टेबल के एट्रीब्यूट क्या क्या है। अभी जो टोयोटा कोरोला है उसके अंदर क्या है यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है, उसका ID है, उसके बाद में मॉडल है। ओके, उसके बाद में उसका प्राइस है। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक किया मैंने यहाँ पे चेंज टाइप बोला, तो यहाँ पे क्या आता है इंटेजर रियल। ओके, तो यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो डाटा सेट है उसमें से मुझे क्या करना है ओनली फ्यू फील्ड्स मुझे लेना है, यहाँ पे फ्यू फील्ड्स इन द सेंस उसके एट्रीब्यूट है उसके कॉलम्स लेने हैं, तो वही यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या आता है एक्सक्लूड कॉलम, मतलब ये कॉलम्स तुम्हारे रिजल्ट के अंदर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेगा वो कॉलम को ये रिमूव कर सकता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से ये जो सेकंड विंडो है यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसका जो फॉर्मेट है मतलब डाटा टाइप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, या जो कॉलम्स है आप अगर आपको वो कॉलम्स नहीं चाहिए ओके तो यहाँ पे सिंपली आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। ओके, इसके बाद में मैं बोलता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। ओके, अभी कहाँ पे वो बोल रहा है यहाँ पे ये डाटा सेट तुम्हें कहाँ पे स्टोर करना है, तो यहाँ पे वो देखो पूछता है यहाँ पे डाटा और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस, उसका लोकेशन कौन सा है यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी। तो यहाँ पे मैंने डाटा और प्रोसेस नाम के 2 फोल्डर क्रिएट करे। तो सिंपली मैं यहाँ पे डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद में नेम,
अगर मुझे इसका नेम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या बोलता है, टोयोटा कोरोला। ओके, ये डाटा सेट है, ये डाटाबेस है, ठीक है। उसको मैंने इंपोर्ट किया अभी, कहाँ से, लोकल सिस्टम के ऊपर से। ओके, इसको मैं फिनिश बोलता हूँ यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि रैपिड माइनर उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, तो थोड़ा टाइम लेता है ये। ओके, तो आ गए यहाँ पे। ओके, देखो जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो डाटा सेट है मैंने इंपोर्ट किया, तो डायरेक्टली यहाँ पे उसका जो डिजाइन व्यू है, ओके, डिजाइन व्यू से कहाँ पे चला जाता है, वो रिजल्ट व्यू के ऊपर चला जाता है, वो यहाँ पे रिजल्ट व्यू के ऊपर चला जाता है। ओके, तो यहाँ से आप अगर देख रहे हो यहाँ पे कौन सा, जितने मतलब कितने रिकॉर्ड्स यहाँ पे, टोटल कितने रोज है यहाँ पे, 1436, इतने क्या है यहाँ पे, इतने रोज है ये डाटा सेट के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली आप देखो यहाँ पे कौन सा है, वही डाटा सेट है जो मैंने एक्चुअली क्या कहते हैं इंपोर्ट किया था, सभी आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये डाटा है, इसको इंपोर्ट कर लिया, अभी रिजल्ट के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखो डिजाइन व्यू के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिजाइन व्यू के लिए मैंने एक भी ऑपरेटर यूज नहीं किया, लेकिन सिंपली ये किसके ऊपर लेके जाता है तुम्हें, रिजल्ट व्यू के ऊपर आपको लेके जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड वाला है, डाटा के बाद में कौन सा, स्टैटिस्टिक्स, अगर मुझे देखना है कि डाटा सेट का स्टैटिस्टिक्स कैसे बनाता है ये। ओके, तो सिंपली यहाँ पे कौन सा है, अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पे कितने सारे फील्ड्स है, इतने सारे रोज है उसके अंदर। देखो एट्रीब्यूट कितने यहाँ पे, 1 to 37 एट्रीब्यूट है, तो हर एक एट्रीब्यूट का यहाँ पे आपको बताता है वो क्या क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका मिसिंग स्टैटिस्टिक, सारे आपको बताता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लेता हूँ यहाँ पे कौन सा, प्राइस का। ओके, अभी प्राइस के ऊपर मिनिमम प्राइस क्या है उसकी, 4350 यूरोज है। ओके, नीदरलैंड का डाटाबेस, इसके लिए यूरोज के अंदर क्या होता है, वो काउंट होता है, कितने यूरोज है ये, मतलब यूज्ड कार है ये, टोयोटा कोरोला की यूज्ड कार है, तो उसका यहाँ पे मिनिमम कितना उसका प्राइस है, 4350। उसका मैक्सिमम प्राइस कितना है यहाँ पे, 32,500 यूरोज है, और उसका एवरेज कितना है यहाँ पे, 10,730। मतलब यहाँ पे पूरा वो स्टैटिस्टिक्स आपको बताता है, ये प्राइस का मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, और यहाँ पे एवरेज, ये यूरोज के अंदर होता है। ओके, इन यूरोज, नॉट इन रुपीज, इंडियन रुपीज। उसके बाद में एज, अभी एज कौन सा यहाँ पे, कार का एज, यूज कार का एज यहाँ पे कौन सा, मिनिमम 1 मंथ का यहाँ पे, और मैक्सिमम कितना यहाँ पे, 80 मंथ्स। ओके, नॉट इन ईयर्स, दिस एट्रीब्यूट इज इन मंथ्स, और एवरेज कितना है उसका यहाँ पे, 55 मंथ्स का है। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग। ओके, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है, फिर से यहाँ पे कौन सा है, मिनिमम है उसका, उसके बाद में मैक्सिमम है, तो यहाँ पे ये ईयर्स के अंदर, शायद ये मंथ के अंदर है, ये भी यहाँ पे बताता है यहाँ पे। उसके बाद में अगर मुझे थोड़ा सा इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स देखना है यहाँ पे, ओके, जैसे यहाँ पे कौन सा फ्यूल टाइप है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देता है, देखो विजुअलाइजेशन, मतलब पेट्रोल की कितनी कार्स है, हाउ मेनी कार्स इन डीजल, हाउ मेनी कार्स इन सीएनजी। अगर मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, ये जो रो अभी सिलेक्ट हो गया, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देन गो टू द डिटेल, सिंपली क्या किया मैंने, इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, गो टू द डिटेल, और यहाँ पे ये बताता है कौन सा, पेट्रोल, पेट्रोल के कितने कार्स है यहाँ पे, 1264, डीजल के कितने कार्स है यहाँ पे, 155, सीएनजी के कितने हैं यहाँ पे, 77। तो यहाँ पे ये पूरा बताता है, मतलब कितने कार पेट्रोल के, कितने कार डीजल के, और कितने कार कौन से हैं, दैट इज वर्किंग ऑन सीएनजी, तो ये सारा बताता है यहाँ पे। उसके बाद में विजुअलाइजेशन, जैसे मैं यहाँ पे ओपन विजुअलाइजेशन बोलता हूँ यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे ये बताता है, देखो डीजल के कितने कार है, उसके बाद में पेट्रोल के कितने कार है, और सीएनजी के कितने कार है। अगर मुझे थोड़ा सा डीप में जाना है, कौन सा ये बार चार्ट है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, देखो पूरा सारा रैपिड माइनर का ब्यूटी यहाँ पे, मतलब बहुत सारे चार्ट्स को क्या करता है, वो सपोर्ट करता है, जैसे कि अभी ये बार चार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ आई कैन सिलेक्ट द पाई चार्ट, ओके, तो पाई चार्ट के ऊपर वो बताता है कितने, देखो ये आपको दिख रहा है कौन सा, स्काई ब्लू है। ओके, स्काई स्काई ब्लू के कितने हैं, पेट्रोल कार्स यहाँ पे कौन सा, 1264। उसके बाद में डीजल के कितने कार्स यहाँ पे,
155। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा CNG के कितने यहाँ पे 77 है, मतलब ये पाई चार्ट भी बताता है यहाँ पे। उसके बाद में अगर मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है। ओके, इसको कैसे चेंज करना है मुझे, ये पाई चार्ट है, अगर मुझे यहाँ पे कौन सा स्कैटर प्लॉट लेना है। ओके, स्कैटर प्लॉट है यहाँ पे। अभी स्कैटर प्लॉट के लिए मुझे क्या लेना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, उसके ऊपर उसका क्या होता है यहाँ पे वाई एक्सिस होता है। अभी एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे क्या करना है, ये एज, जैसे मैं यहाँ पे एज सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, और उसके बाद में वॉल्यूम कॉलम्स के अंदर मुझे क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे प्राइस सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी, ओके दिखाई दे रही है। ओके, अभी मैंने क्या किया यहाँ पे स्कैटर प्लॉट है, मैंने वो सिलेक्ट किया यहाँ पे एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लिया यहाँ पे प्राइस लिया, देखो आपको प्राइस दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, और वाई एक्सिस के ऊपर मुझे क्या लेना है यहाँ पे, यहाँ पे मुझे एज लेना है। ओके, उसके बाद में कलर लेना है मुझे यहाँ पे, मैं कलर के लिए लेता हूँ यहाँ पे फ्यूल टाइप। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखाई देख रहा है कौन सा, ऑन दी स्कैटर प्लॉट ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव टेकन एज वर्सेस ऑन दी वाई एक्सिस आई हैव टेकन प्राइस। ओके, अभी इसमें क्या होता है यहाँ पे कि जैसे कार का प्राइस है, अभी कार का प्राइस पहले क्या होता है, जैसे कि उसका जो एज है अगर वो कम है तो क्या होता है उसका प्राइस हाई होता है, लेकिन जैसे यहाँ पे क्या होता है उसका एज, जैसे उसका क्या होता है यहाँ पे एज, जैसे उसका एज बढ़ता है यूज कार का, तो वैसे क्या होता है उसका प्राइस भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली कौन सा है, जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है दिस इज दी डीजल कार, यहाँ पे जो पेट्रोल कार आपको दिख रहा है कौन सा वाला, यहाँ पे ये ग्रीन वाला। उसके बाद में CNG का आपको ये दिख रहा है, शायद 1 मिनट बाकी है मीटिंग खत्म होने के लिए। सर ने शायद अटेंडेंस आपको दी, तो अटेंडेंस आपको फिलअप करनी हो। ओके, अटेंडेंस लिंक विल बी ओपन फॉर ओनली 10 मिनट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेशन। तो अभी जो बाकी वाला पार्ट है मैं कल लेने वाला हूँ, नहीं तो डोमचे सर लेंगे। हॅलो, हाँ सर, काही तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन द्यायचं असेल तर देऊ शकता तुम्ही। ये जो भी सेशन है ना, इन सभी सेशंस के आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। तो आज का टास्क है आपका रैपिड माइनर